हमारे बेस्ट फ्रेंड रजा। Thank you. आ जा So nice to be associated in a film also together, huh? Other than being friends. मोहम्मद भाई आप बहुत आगे अच्छा बोला यार तुम्हारा बड़ा पास अभी क्या है नेक्स्ट? अभी क्या मैडम को सेंटर में ले लेते लाइट ठीक है हैं। मैडम को सेंटर में ले लेते नहीं सो रहेंगे सेंटर हैं। ये सेंटर में अच्छा लगेगा। जीत को नहीं सो रहेंगे सेंटर क्या इनका तो सारा वो पोस्टिंग का मटेरियल है ना भैया, ये दोनों पोस्ट भी सौ है। दोनों सिंगर। या सिंग सिंह आ जाओ। बताइए बहुत बहुत विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। एक और कर दे I told him, I said, just come. ओके अच्छा एक बार तो छा नहीं बस सो क्या कहना चाहेंगे, गाना कल रिलीज हो रहा है, लाइफ नॉर्मल हो रही है थोड़ी थोड़ी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? वेल ये गाना बहुत अच्छा है। गाने का नाम है एक पप्पी विच इज़ कंपोज्ड बाय अनंता एंड अमन, जो कि न्यू म्यूजिक डायरेक्टर हैं बट बहुत ही टैलेंटेड हैं। और जब ये मोहम्मद भाई ने मुझे गाना सुनाया था तो तभी मुझे थोड़ा सा ये इतना अच्छा नहीं लगा था, बट जब मैंने गाना गाया 3-4 बार गुनगुनाया, बहुत ही फ़नी गाना है एंड थोड़ा डबल मीनिंग भी है इसके अंदर, बट ओवरऑल ये गाना बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ है। एंड मुस्कान एंड तन्मय सिंह ना, मुस्कान एंड तन्मय सिंह both are looking gorgeous, so my best wishes to मुस्कान, my best wishes to मुस्कान एंड तन्मय। आई होप के सभी को ये मूवी अच्छी लगेगी। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इसको प्रोड्यूस किया है लकी मुरानी, एंड मेरा बेस्ट भाई है मोहम्मद भाई इन द हाउस जिन्होंने मूवी प्रोड्यूस करी है। सो आई एम श्योर कि गाना अच्छा है, मूवी अच्छी है, दोनों खूबसूरत लग रहे हैं, हीरो एंड हीरोइन। मूवी चलेगी और आपको अच्छी लगेगी। हमारी इंडस्ट्री नॉर्मल हो रही है, थिएटर्स में रिलीज हो रही है 18th को, तो आपका क्या, यू नो, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि 18 दिसंबर को ये मूवी रिलीज़ हो रही है एंड आई एम श्योर कि लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग पक भी गए हैं घर में बैठ बैठ के, इंक्लूडिंग मी। 8 महीने से मेरे को भी कोई काम नहीं मिला, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिला होगा और बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाए, इधर उधर नहीं घूम पाए। सो दिस इज़ द राइट टाइम, सो गो टू द थिएटर ऑन 18th of December, वॉच दिस ब्यूटीफुल मूवी सयोनी। Finally, the industry is getting back, and today you're here to support Mohammed Bhai for Sayoni. What do you have to say? All I can say is Mohammed Bhai is a very smart guy. He's making hay while the sun shines. I think he's taking very bold steps to release his film at a time where theatres need it, and especially the industry needs it. And you know, these baby steps that everybody takes towards getting back to some kind of normalcy is excellent. So I really wish him all the best. I hope his movie does well. I hope it pulls people to the theatre, and I'm sure it will. The trailers are looking very commercial, and I think people are looking forward to getting back to their theatres with their boyfriends, girlfriends, families. I don't know, but let's see. I hope families go back soon as well. Good initiative, yeah. What can I say? It's been a tough time for everybody. I think the whole industry is looking forward to getting back on their toes, and you know, especially all of us are really waiting to go back and see Hindi movies in the theatre. So yeah, it's just amazing to be here, and you know, amazing to see that सब लोग कोविड से ऊपर गए हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहिए. You know, I think that's important. शेर होना ज़रूरी है, लेकिन सावधानी से. Does the song Sayoni bring nostalgia to you? Of course. I mean, you know, this is quintessential Bollywood stuff. Every time you hear just the word Sayoni,
you know, it always rings a bell to all those melodious music, you know, the music compositions that were there before. And I think, you know, Mohammed Bhai's film out here and Lucky's film out here is hitting the point as far as commercial cinema is concerned, you know. I think there's an element of that beautiful, you know, Indianness that we all came from while watching movies growing up, that is there in this film, and I wish the couple all the best. I think there's a lot of heart and soul, and you can see their youth is behind it. So good luck to them. And Mohammed Bhai, why aren't you in the film, yeah? No, I'm always behind the ये scenes. देखो, इसको film में रहना है. You should be in the Always film. behind the scene. Come, you all want to see the song, guys? Come up. Come on, let's go. Let's go. Thank you very much, guys. अभी तो अभी आप ट्रेलर देखकर आए हैं, you care for मोहम्मद जी and Lucky of course. What do you have to say? अब pandemic almost ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है. We don't know still. Absolutely. कैसा लग रहा है आपको? Our industry is getting back. You see, फिल्म इंडस्ट्री यानी लास्ट 7-8 महीने से हम लोग समझ नहीं आ रहा बेचारे कैसे चल रहा है मामला, लेकिन अब हिम्मत दिखा के लोग रिलीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं. आई थिंक टेनेट ने भी बहुत अच्छा किया है. वंडर वुमन आ रही है और मुझे लगता है ये फिल्म तो एब्सोल्युटली बॉलीवुड टाइप की फिल्म है. एंड आई लव दिस सॉन्ग. सयोनी जो गाना है वो मतलब मेरा एक ज़माने का फेवरेट गाना है, एंड उसे वापस सुनने में बहुत मज़ा आता है. थोड़ा इनने चेंज किया वो गाना, लेकिन फिर भी माइंड ब्लोइंग बनाया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फिल्म्स आर बैक. बहुत ज़रूरी है इंडिया में एक एंटरटेनमेंट का आई थिंक सबसे बड़ा ज़रिया फिल्म्स है. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फिल्में थिएटर में फिर से लगने लग रही हैं. मेरा बड़ा दिल था टेनेट जाके देखूँ, लेकिन उससे पहले मैंने देख ली, और अब मैं वंडर वुमन जाके देखूँगा और ये भी देखूँगा. तो थिएटर में भी आप मैसेज देना चाहेंगे उनको सबको कि थिएटर जाके सब देखिए. एब्सोल्युटली आपको समझना पड़ेगा कि प्लीज़ ज़्यादा इससे आप डरे मत. जो बहुत डर रहे हैं आई थिंक उनको ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और थोड़ी स्टीम ज़रूर लें जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता. वैक्सीन भी आ ही गए हैं, 5-6 आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला किसको लगेगा. लेकिन बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट गेट अफ्रेड. जैसे हमें वायरल होता था वैसे ही कोविड है. बिंदु सर, अभी मीका भी आने वाले थे लेकिन अभी आ नहीं पाए, तो मीका का जो कमेंट है कंगना को लेकर उसका क्या कहना चाहेंगे? वो दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, हर कोई कर रहा है उनको, लेकिन कंगना का जो बेसलेस कमेंट्स है मतलब जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं. हाँ नहीं, आपको समझना पड़ेगा कंगना कभी कभी उनकी ट्वीट्स बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि वो सही चल रही है, लेकिन हमें गलत लग सकता है. और इस बार दलजीत को गलत लगा है. दलजीत की पहली फिल्म मेरे साथ थी लायन ऑफ पंजाब, और तभी मुझे दिख रहा था इसमें बहुत फायर है. उसने ट्वीट पे भी दिखा दिया कि बहुत फायर है. एंड आपको समझना पड़ेगा हम पंजाबी हैं और हमें लगता है कि फार्मर्स के साथ अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो हम उन्हें सपोर्ट करें, तो हम सपोर्ट करते हैं. लेकिन हमें लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस्ट्री जब से हम पैदा हुए हैं तब से मोदी जी जैसा हमने देखा नहीं. तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. तो हम चाहते हैं कि मोदी जी इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर. जिस तरीके से पहले फार्मर्स सुसाइड करते जा रहे हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी. तो मोदी जी ऐसा काम करके दिखाएंगे कि कभी सुसाइड ना हो, हमें पता है. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जो दिल्ली तक पहुंच गई है, इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए. सर ये भी कहना चाहूँगा कि जब सेलिब्रिटी कमेंट करते हैं ट्विटर वॉर होते हैं, टग ऑफ वार कर सकते हैं या सैटेलाइट चैनल्स पे, मतलब इस तरह का, तो ये अगर सपोर्ट करना है या नहीं करना वो आप साइलेंटली भी कर सकते हैं. तो इसके बारे में पता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आप सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे आके बोल रहे हैं कोई. नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी को तो वो ट्वीट कर देते हैं, फिर उन्हें कोई करेक्ट करता है तो बात कभी कभी बढ़ जाती है. तो ये बढ़ गई है बात. तो ऐसी बात जब बढ़ जाती है तो उसमें कई लोग घी भी डालते हैं. हमारे इंडिया की सेइंग है कि घी डाल दो थोड़ा और, तो वो फिर घी और भड़क जाता है. तो हम ऐसे काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि ऐसे चीज़ के अंदर आग ना डालें. इसीलिए हम चाहते हैं बस कि फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे आके ये सेटल हो जाए. बहुत इंडिया के अंदर चीटिंग है, आपको समझना पड़ेगा. वही मोदी जी सारी चीटिंग रोकने की ट्राई करते हैं. तो एक ट्रक है 35 टन का आता है और वहाँ जैसे गवर्नमेंट के गोडाउन में जाता है तो 50 टन हो जाता है. फार्मर के लिए 30 टन मिलता है, 20 टन कहाँ जाता है. वो कोशिश है ये जो गुल हो जाता है माल उसको रोकने की. तो वन मोर थिंग, आई मीन बिग बॉस की भी बात कर लें कि अभी बिग बॉस का जो सेशन जो चल रहा है, अभी आप देखिए जो शुरुआत हुई थी अभी हिस्सा ले चुके हैं. तो इनिशियली सेलिब्रिटी से स्टार्ट हुआ, फिर कॉमन पीपल के लिए भी, फिर बहुत एवरेज लोगों के लिए भी, और जिस तरह का मतलब इक्वेशन है जो लोग अंदर हैं उस हाउस में, उसके में बताइए कि आप कितना ज़्यादा समझ डे टू डे हुआ है. टीआरपीज भी नहीं है कुछ खास. आपको समझना पड़ेगा लास्ट ईयर बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट बिग बॉस चला है. सिद्धार्थ और सना ने और बाकी सब ने जितने भी लोग थे आई थिंक बहुत सुपर हिट सीज़न 13 दिया और बहुत लंबा खींच दिया. बिग बॉस की
यानी कैश बैंक बहुत बढ़ रहा था, उनको दिल कर रहा था ख़त्म ही ना हो, 5-6 महीने लगा दिए। तो उसके बाद फिर से बिग बॉस आना एक बहुत ही हार्ड चीज़ थी, लेकिन वो सिद्धार्थ को वापस ले आए, गौहर और हीना को लाए, तो स्टार्ट अच्छा हो गया। पर उसके बाद ये लोग आई थिंक थोड़ा सा भटक गए, बहक गए, कुछ अलग ही टाइप का बिग बॉस चला रहे हैं। तो मेरे जैसा आदमी भी देख नहीं पा रहा और दिल नहीं कर रहा कि बिग बॉस देखना ही है। मैंने हमेशा ज़िंदगी में बिग बॉस ऐसे देखा है कि एक भी एपिसोड छोड़ता नहीं, पर इस बार दे फेल्ड अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन क्या रॉन्ग हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, आई डोंट नो। जो टीम है वो तो वही आंसर कर सकती है। दे शुड बी सैक्ड, जिसने भी ये इस साल का बिग बॉस चलाया है। समथिंग सरप्राइज फ्रॉम योर साइड फ्यूचर में करने वाले कुछ ऐसा यूनिक या कुछ ऐसा इनोवेटिव? हम भाई देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे तरफ से। कभी अयोध्या जाके रामलीला, कभी कुछ का कुछ चलता रहता है। जब ऊपर वाला जो काम देता है हम लोग तो कर लेते हैं। पर अभी फ़िलहाल तो बीवी का है, सब लोग को नेल पॉलिश लगाती ही जा रही है, ब्लू स्काई करती जा रही है। और पिक्चरें चल रही हैं 2 पंजाबी, एक नानक नाम जहाज़ है और एक निडर। तो 2 ये पिक्चरें चल रही है। एक हिंदी पिक्चर भी करने जा रहे हैं अभी। एक कल परसों में मेरा वो आएगा, क्या इसको बोलते हैं, सावधान इंडिया। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। It's very very exciting, and you know when you walk in and have the media take your pictures and the frenzy, it feels like we're back to old times, and it feels like we're all back in action. And I hope the film industry is continues in the same manner now, and everything is back in action and like old times, so it feels really really great. So, the song is releasing tomorrow, Puppy song by Mika Singh, and Sayuri is doing extremely well. So, as a producer, I'm sure you must be feeling proud that, there's something good, some good news happening in this pandemic. How excited are you? Finally, the release of a movie always feels like the birth of your baby, like you've been planning it for so long and working on it and nourishing it. And then finally when it reaches its zenith, and when it's going to release, it feels like it's just like a dream. It's you're just waiting for it to realize. And especially when they've put in such hard work, Tanmay, Muskan, and they're looking absolutely stunning in the film. The music is awesome, everything is so good, and it's really really exciting, and we're all pretty kicked about it. Yeah. So, Lucky, what message would you like to give to the audience now, because theatre's opening and the film is a theatrical release and not just a OTT and a digital at this point? I would like to tell the audience one thing. They're newcomers, and we want you to encourage the newcomers. We want you to come to the theatres. We want you to watch the film. We want you to accept and embrace new talent from all over the country. Talent that doesn't come from the film industry, talent that comes from various fields of life, and they take the plunge and they work really really hard to give you their best. So we would love for you to embrace them with open arms. एंड जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ है, हम सभी यहाँ पर हैं। तो आप बताइए कि लॉकडाउन कैसे बीता, एंड लॉकडाउन के बाद ये फिल्म आ रही है तो क्या फील करती हैं आप? लॉकडाउन बस इसी इंतज़ार में बीता कि कब ये फिल्म रिलीज़ होगी। कब ये लॉकडाउन खत्म होगी। यस, इसी का इंतज़ार था। अब लॉकडाउन इज़ ओवर, एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी। और हम ये कदम ले रहे हैं फिल्म को रिलीज़ करने का, और हम चाहते हैं कि सब कोई आए और ये फिल्म को देखे और अप्रिशिएट करे। Lucky, now that you've started, the banner is on and we already have Tanmay and Muskan being launched. What's next? Good things, big things, as big as this, or we try to get better with every step of the way, and a lot of genres and a lot of plans. Thank you and all the best. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। Thank you so much. ये बोल रहा था डायरेक्टर से, हमारे नितिन जी से, जिनके साथ मैंने भी एक फिल्म करी है, LAC अभी आने वाली है, कि मैं इतने समय बाद एक थिएटर में बैठ के कुछ देख रहा हूँ कि उसका प्लेजर अलग है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, द ट्रेलर आई सॉ सयोनी का, इट्स वेरी नाइस, इट्स एक्शन पैक्ड, इट लुक्स लाइक अ वेरी वेल शॉट एक्सपेंसिव फिल्म, एंड मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल मसाला ब्लॉकबस्टर फिल्म दैट्स गोइंग टू कम आउट। सो या, आई विश देम ऑल द बेस्ट। सही गाना आपको कितना नॉस्टैल्जिक लगता है? बहुत, मैं बचपन में मतलब स्कूल टाइम पे बहुत सुनता था, और अब उसका जो ये नया वर्जन सुना ये भी बहुत हिट होने वाला है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, कि उनको इतना अच्छा गाना इस फिल्म में डालने को मिला। एंड
जो टाइटल सॉन्ग है, दैट्स सच अ सॉन्ग विच इज़ एनी वे हिट विद द ऑडियंस एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? थिएटर्स खुल रहे हैं अभी, यू नो, स्पेशली जो ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड पैंडेमिक है, चीज़ें अभी बहुत कंट्रोल में नहीं आई हैं, वैक्सीन्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं लाइक मास्क एंड सैनिटाइज करके अपने हाथों को, एंड सिनेमा हॉल्स भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके वापस उन्होंने खोला है अपने बिजनेस को. सो प्लीज़ सपोर्ट द फिल्म्स एंड सपोर्ट सिनेमा हॉल्स, बिकॉज अगर हम सपोर्ट आज नहीं करेंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगे, और जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब शायद हमें वो प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो अभी मिलते थे पहले वो नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ सपोर्ट द सिनेमाज, एंड जो थिएट्रिकल रिलीज़ होती है फिल्मों की लाइक सयोनी की जो होने वाली है, सपोर्ट दैट, गो एंड वॉच द फिल्म इन अ थिएटर and just make it a super hit, guys. Thank you. आप अभी, you know, unfortunately Rahul fell sick while shooting for your film and Nishant and आप सब वहाँ थे. क्या कहना चाहेंगे? Obviously coming back to Sayoni this. Yeah. Hi everyone. I'm the director of Sayoni. हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में? Okay. Okay, so I am the director of Sayoni. And आपने ट्रेलर देखा, आपको बहुत पसंद आया होगा. और अभी लास्ट मंथ मैं और मेरी टीम, मेरे एक्टर्स विशाल, इन्होंने पीपली लाइव, जॉली LLB, फिरंगी, काफ़ी मूवीज़ में काम किया है, और निशांत, ही इज़ जस्ट आउट ऑफ बिग बॉस एंड ऑफ कोर्स इज़ वेरी फेमस. एंड ये हमारी एक्टिंग टीम थी, और हमारे साथ राहुल रॉय सर भी थे. और आप सब ने न्यूज़ सुना होगा कि LAC की शूटिंग के दौरान राहुल रॉय को स्ट्रोक आया था. So it was during our shoot, and just before LAC का शूट हम सयोनी का टीज़र लॉन्च किए थे. हमने अरिजीत सिंह का गाना लॉन्च किया था. राहुल सर हमारे साथ, उन्होंने इंटरव्यू दिए थे और एकदम परफेक्ट हेल्थ में थे. एंड हमने कहा था कि LAC के बाद आके हम फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे. अनफॉर्चुनेटली आज ट्रेलर लॉन्च का दिन है, और राहुल सर जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फिल्म के, उनका नया लुक है, उनका यूनिक कमबैक विलेन रोल है, वो आज यहाँ पे नहीं है. आई थिंक ही लुक्स अमेजिंग. अमेजिंग, बहुत ही अलग लुक है राहुल सर का. और मतलब जैसे ही ट्रेलर देखा, आई टोल्ड नितिन सर कि माय गॉड, ही इज लुकिंग सो ऑसम. मतलब लग रहा है कि एक रशिया में एक इंडियन मिक्स ब्रीड का कोई यू नो प्रॉपर विलेनिश रोल है, एंड द हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग ऑसम, किक एस. थैंक यू. तो उनका रोल हमने उनके रियल लाइफ से बहुत ही अलग रखा है. कोकेन स्मोकिंग, वुमनाइजर, विलेन, शूटर. ही इज़ अ करप्ट रशियन कॉप. उनका नाम है अरसान. सो वी वांटेड टू रिवील हिज लुक टुडे. आज हम चाह रहे थे कि वो उस लुक में आए, ब्लीच्ड हेयर, ब्रेडेड लुक, बट अनफॉर्चुनेटली LAC की शूट में कुछ ऐसा हुआ. 23rd को उनका लास्ट डे था शूट का, 23 नवंबर को, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ 4-5 दिन वहाँ पे रुकना चाहता हूँ छुट्टी पे, और वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ. एक केवल राहुल रॉय ऐसे इंसान है जो -20 डिग्री वेदर को कह सकते हैं कि मैं वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ. तो उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने, विशाल और राहुल सर का ऑफ था. विशाल को उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. विशाल उनको CT स्कैन के लिए लेके गए, और 25 को मैं भी एक डॉक्टर हूँ, और मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स KEM के सबसे कंसल्ट किया. उन्होंने कहा कि उनको तुरंत मुंबई एयरलिफ्ट किया जाए. तो वहाँ के DM से, बसीर सर से हमने रिक्वेस्ट किया. उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर अरेंज किया और उन्हें मुंबई लाया गया, नानावटी में एडमिट किया गया. और मालूम पड़ा कि उनको एक माइक्रो इन्फाक्ट है, बहुत छोटा सा इन्फाक्ट, ब्लड सप्लाई ब्रेन की रुक गई है, जिसके कारण चल फिर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन स्पीच में उनको ज़रा सा प्रॉब्लम था. आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन सभी के लिए बहुत बड़ा है. तन्मय के लिए तो बहुत ही बड़ा है, हम सभी के लिए बहुत बड़ा है. नितिन कुमार गुप्ता जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की, उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है. और राहुल रॉय जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनका एक तरीके से बहुत अच्छा कमबैक है, और लोगों को बड़ा अच्छा लगा. हमेशा वो अपने बालों की वजह से और एक्टिंग की वजह से जाने गए, तो इसमें जो बालों का यूनिक स्टाइल, तो आज वो होते तो बड़ा अच्छा होता. एंड 2-3 दिन जो राहुल रॉय की उनके साथ जो हुआ, उनकी जो तबीयत ख़राब हुई ग्रेजुअली, और जैसे हमने समझा कि उनके साथ क्या हुआ है, बड़ी वो उन्हें देखना उस वक्त बड़ा कष्टदायक था, और बड़ा इतना जुड़ाव, और उनके सभी फैंस के लिए भी वो चीज़ें कष्टदायक थी. लेकिन क्योंकि हमारे डायरेक्टर एक डॉक्टर भी हैं, तो बहुत जल्दी उन्होंने चीज़ों को गेज किया, पकड़ा, और बहुत जल्दी क्विक एक्शन लिया.
और उसका फ़ायदा ये मिला कि आज वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से यहाँ पे। ये गुड न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे नानावटी हॉस्पिटल से राहुल सर डिस्चार्ज हो गए हैं। ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ स्पीकिंग वेल, ही इज़ थिंग। एंड अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद उनको यहाँ पे लेके आता, बट एज अ डॉक्टर आई वुड आस्क हिम टू रिलैक्स फॉर 1 week more. So I think we should give a hand of applause for his brave Mr. Rahul Roy. And I think in the next interview हम उनको फिल्म के लुक में लेकर आएंगे। एंड निशान जी, जैसा कि अभी आप बिग बॉस की दुनिया से बाहर आए तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड कुछ कहना चाहेंगे आप? उस घर में ऐसा होता है कि आप बाहर की दुनिया को भूल जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना डिस्कनेक्टेड होते हो, आपके पास ना फ़ोन होते हैं ना बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट होता है, कि आपको लगता है दुनिया वही है और उसी में जो आपकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप उसी को दुनिया समझना शुरू कर देते हो। वहाँ से बाहर आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है, एक चैन की सांस आप लेते हो कि हाँ, नॉर्मल दुनिया ऐसी नहीं होती है, नॉर्मल दुनिया ऐसी होती है। और आज मैं नितिन सर को कह रहा था कि यहाँ पर इस थिएटर में बैठ के एक फिल्म का प्रीव्यू देख पाना इज़ सच अ प्लेजर, जो अब मुझे समझ में आ रहा है। बिकॉज पहली बात, मैं नॉर्मल दुनिया से काफ़ी डिस्कनेक्टेड था, दूसरा थिएटर में बैठ के मैं शायद 1 साल बाद ऑलमोस्ट देख रहा हूँ कुछ, तो ये बहुत ही एक प्लेजर वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई टोटली एग्री विद सर कि आज राहुल रॉय हमारे साथ यहाँ होते अगर इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। बट द गुड थिंग टू फोकस ऑन इज़ दैट वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, उनकी स्पीच थेरेपी चल रही है, ही इज़ गोइंग टू बी बैक ऑन हिज फीट वेरी क्विकली एंड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। सो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप बिग बॉस को? कितना देख मैं फॉलो जितना कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि लाइक यू नो हम लोग पिछले महीने शूट कर रहे थे कारगिल में, तो वहाँ बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था देखने का। वापस आने के बाद भी मैं कुछ स्निपेट्स देख पाता हूँ, और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं लोगों के साथ समय बिता चुका हूँ, उनको करीब से जान चुका हूँ, तो इस तरह से एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए मैं उनको देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली देखना छोड़ दिया। कुछ न्यू एंट्री हुई है घर में, तो आपने देखा? हाँ, न्यू एंट्री हुई है, कुछ मंजे हुए खिलाड़ी वापस आए हैं जिन अब जो खुद अपना सीज़न तो खेल ही चुके हैं और एग्जिस्टिंग सीज़न को भी पूरा देखकर वापस आए हैं इस सीज़न में खेलने के लिए। तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग हमारी कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेंगे वो। फाइनली फिल्म जो है सिनेमाघर में रिलीज हो रही है एंड हमारा सिनेमाघर की ओपनिंग हो चुका है, फिल्में धड़ल्ले से रिलीज हो रही है, हम सभी यहाँ पर हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज़, इट्स लाइक वी आर गोइंग बैक टू द नॉर्मल। अभी तक हम न्यू नॉर्मल की बात करते थे, हम नॉर्मल में वापस जाने की तरफ कदम उठा रहे हैं। सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देखने का जो प्लेजर होता है वो बिल्कुल भी फ़ोन पे या टीवी पे नहीं आ सकता। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर सयोनी रिलीज़ हो रही है सिनेमा हॉल में, तो सभी ऑडियंस से मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ टिकट खरीदें और सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म देखें, ताकि सिनेमा हॉल का बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस जो होना चाहिए वो हो, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें ऐसी अच्छी फिल्में बनाना और सिनेमा हॉल में रिलीज़ कर पाना। इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है किसी भी डायरेक्टर के लिए कि उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है। फिर भी अभी सिनेरियो बहुत अलग है। कोविड इज स्टिल एन एक्टिव डिजीज़ एंड मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप टिकट खरीद के फिल्म देखिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क पहने रखिए। यू विल बी परफेक्ट एंड द मूवी इज रॉकिंग, प्लीज वॉच इट। यही होता है जब डायरेक्टर डॉक्टर भी होते हैं, ऐसी सलाह देते हैं वो अपनी फिल्म के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, और बड़ी हिम्मत दिखाई फिल्म बनाने से लेकर के उसको। विशाल इस फिल्म के राइटर भी हैं सयोनी के, और एलएसी के एक्टर भी हैं। एक्टर पहले बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने राइटिंग करवा ली, ये टैलेंट इन्होंने ही पहचाना। सो लकी मोरानी जी जो फिल्म को प्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ लेके आ रही हैं आगे, जैसा कि आप सब बोल रहे हैं कोविड टाइम्स वगैरह, बड़ी हिम्मत दिखा रही हैं। तो पहली बार हम तो देख रहे हैं उन्हें, मिले, हम तो बड़ा नाम सुनते थे, एकदम आयरन लेडी है। इतना हिम्मत दिखाना, न्यू कमर के साथ फिल्म को ऐसे टाइम पे लेकर के आना, शी इज़ अ ट्रू बिजनेस वूमेन। आई थिंक वो सिनेमा को समझना, और बहुत बड़ा अच्छा लगा देख के। और नितिन कुमार गुप्ता ने तो बड़ी मेहनत करी है फिल्म में, आप फिल्म देख के, ट्रेलर देख के आपको एहसास हो ही रहा होगा। और आज जिस तरह की मेन एक बेसिक बात ये कहना चाहूँगा ऑडियंस से, जो कहते हैं कि आप जाइए फिल्म देखिए, तो जाना फिल्म देखना तो ऑडियंस के ऊपर है। एक बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े, कई पीढ़ियों से हैं इस इंडस्ट्री में। वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अगर फिल्म ख़राब है और 1 किलो बादाम दे के भी ऑडियंस को बिठा दोगे तो नहीं देखेगा। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा जाइए देखिए, वोट नहीं ले रहे, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म में मैं राइटर रहा हूँ, ये फिल्म मैंने देखी है,
बनते हुए देखी और आज जब बन चुकी है तो भी मैंने देखी है। आपको एक चीज़ बताऊं, आज की ऑडियंस बहुत का उसका विज़न बहुत बड़ा है, इधर हॉलीवुड देखता है, इधर बॉलीवुड देखता है, वो सब देखता है। तो ये फिल्म जो है आज आपके इंटरनेशनल विज़न में, इंटरनेशनल प्लेटर में जो आपके मेन्यू में चीज़ें पड़ी हैं, डिशेस, उसको मैच करती है फिल्म। एंड यू सी इट कि ये फिल्म क्या है। और ट्रेलर देख के भी ऐसा ही लगता है, एक बहुत ही हॉलीवुड फील भी है। जो रशियन पार्ट्स हैं मतलब फिल्म के, वो मुझे देखकर मैंने आई टोल्ड नितिन सर ये कि एक अलग वर्ल्ड समझ में आता है, एक इंडियन वर्ल्ड समझ में आ रहा है और एक अलग हॉलीवुड ये वर्ल्ड समझ में इनकी आ रहा है। कई एक फिल्में बन चुकी हैं, कई फिल्में फ्लोर पे हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं नितिन कुमार गुप्ता। इनकी पहली रिलीज फिल्म है जिसके लिए लकी मोरानी जी बहुत जिम्मेदार हैं, उनका थैंक यू है। और इनको मैं टाइटल देता हूँ आज पूरी मीडिया के सामने, ये बड़े उग्रवादी डायरेक्टर हैं। उग्रवादी डायरेक्टर, यस। आने वाले समय में जब स्टार्स काम करेंगे तो कहेंगे कि पहला विशाल ओम प्रकाश ने कहा था बड़े उग्रवादी डायरेक्टर, वेरी एग्रेसिव, ही कैन डू एनीथिंग। फिल्म देखो पता चल जाएगा। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।